Taji, good morning. Morning, good Good morning. morning, everyone. Good morning, ma'am. Today, Good I, Sukarya morning. Nehra, Good welcome you morning. all on behalf of Dr. Deepthi Verma in the beautiful, magical sessions of the morning. This is a magic only, now that our morning starts with this beautiful session, that we are reading these two powerful books here. And for that, like, I'm so grateful. Today, I got a chance to talk to you and lead the session. So I am so thankful to ma'am for giving me this opportunity again. So yeah, we'll be starting the session today. And the first and foremost thing that I would like to I would like to be grateful for all our YouTube listeners and viewers. You are doing an incredible job, everyone. Like listening to the sessions and commenting and increasing the views. This way, we are doing towards the society. We are giving to the society. That's the biggest gesture that we are doing, and that's commendable actually. So yeah, we'll be reading two books here. The first one, of course, is The Magic, written by Rhonda Byrne. And second one is The Hero, written by Rhonda Byrne again. So, yeah. So, Muskan from Delhi will be reading for us today. And before that, I would like to wish Ritu Kukreja ma'am for her birthday. Happy birthday, ma'am. I don't know if you are here in the session or not, but let's wish her a happy birthday. Okay, you are not in the session right now, then we'll wish you afterwards. So, the chapter that we are in today is magical relationships. Today, we are on the day 3 of this magical and transformative journey. Day 1 में Rhonda Byrne told us to begin our day with gratitude, with writing the blessings that we already have in our life. So we created that thing for us, right? And yesterday we did the magic rock practice. What we do in magic rock, that हम लोग सारे के सारे दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ हुई हैं, उनको याद करके उनका शुक्राना करते हैं. So that is working towards your subconscious mind. We are doing those practices day number 1 and day number 2. That's a work toward our subconscious mind. So अपने subconscious mind के लिए हमने काम किया. हमने अपने 10 नियामतों को गिना, अपनी 10 blessings को गिना. And as ma'am told us कि हम लोगों ने अब ये कोशिश करनी है कि we have to diversify. We have to diversify the blessings that we have. हमने ईच एंड एवरी रेल्म के ब्लेसिंग्स को काउंट करके उसको हमने लिखना है. दैट वी डू इन द काउंट माई ब्लेसिंग्स थिंग. दैट हम लोगों ने सुबह की शुरुआत ही उसके साथ की है. द फर्स्ट थिंग. नाउ कम्स कल का प्रैक्टिस जो था मैजिक रॉक, उसमें हमने अगेन सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी लोगों ने हमारे लिए जो जो कुछ किया, या हमने अगर अपने लिए कुछ किया, तो उसके लिए हमने थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड किया. Starting the day with the blessings and ending the day with beautiful gratitude practice that we are doing. So now is the time to create those difference in the conscious mind of us. That what our conscious mind does. हम कॉन्शियसली अगर कोई चीज को अच्छे से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा, है ना. तो हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करने के लिए अपने कॉन्शियसनेस को भी ठीक करना पड़ेगा. सो हम लोग चूंकि ये मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, तो हर एक रेल्म को, हमारे जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को हमने मैजिकल बनाना है. We want to lead the life of excellence. For that, relationships वाला जो aspect है, that is the first and foremost step to take on. हम लोगों ने अपने कॉन्शियस माइंड को ठीक करने में, कॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें लाने में, सो दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर होके ओनली द बेस्ट थिंग्स गोज इनटू अ सबकॉन्शियस माइंड. उसके लिए वी आर एट वर्क टुडे. And the men at work कब की बात है ना. So we are at work towards this gratitude practices, towards this beautiful journey in which we will be creating our dream life. So magical relationships में we can look into the picture first. So इस पर्टिकुलर पिक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक किचन का ऐसा सीन लग रहा है. किचन का जो वर्क टेबल होता है हमारा, वो लग रहा है. एंड हियर पिक्चर्स आर लाइंग
जिसमें एक बच्चा है, एक हमारे साथ के लोग हैं, मतलब दो जनों की पिक्चर है, एक दो पिक्चर्स अलग अलग है, एक पिक्चर्स एक साथ है। तो ये इस चीज को डिपिक्ट करता है कि ये हमारे डेली के लोग हैं, जिनके साथ हमारा डेली आमना सामना होता है। दोज पीपल हु एक्चुअली हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, दोज हु आर कनेक्टेड विद अस, है ना, किसी भी तरीके से हम उनके साथ कनेक्टेड है, उनके सुख दुख का, उनके खुशी का, उनके हेल्थ का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उन लोगों को हमने उनकी पिक्चर्स को आज लेना है, और उनके साथ वी आर मेकिंग आवर रिलेशनशिप ब्यूटिफुल टू द नेक्स्ट लेवल। इट माइट बी ब्यूटिफुल एज ऑफ नाउ ऑल्सो, आज भी वो खूबसूरत रिश्ता ही हो सकता है हो, लेकिन हमको उसको भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, टू द लेवल ऑफ एक्सेलेंस। जब वो कुछ भी बोले, हमें उसका कोई अफेक्ट ना हो, मतलब कुछ बुरा बोले, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा, कुछ एंग्री अगर हो वो हमारे पर, we should not get affected by that. We have to reach that level. We have to reach to the level when our friend, like suppose if we have chosen our friend for the magical relationship practice, अगर हमने उनको चूज किया है, तो हमको we should feel bliss, we should reach the level of blissfulness. वहां पहुंचने के लिए हम ये मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने, आप कल ही आप सबने पिक्चर्स रख दी होंगी, अगर हार्ड कॉपी थी तो हार्ड कॉपी को ले लेंगे, नहीं तो हम लोग डिजिटल हमारे मोबाइल्स में या हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे हम लोग उन पिक्चर्स को बराबर करके लाएंगे। तो उन पर्टिकुलर पिक्चर्स को हमने कल चूज कर लिया होगा, लेकिन अगर चूज नहीं भी किया है तो आज हम लोग सेशन के बाद तुरंत से वो पिक्चर्स निकाल लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, क्योंकि रिश्ते जो है ना हमारे लाइफ के, वो हमारी बुनियाद होते हैं। रिश्ते हमारे जो आगे, जो हमारी लाइफ जो होने वाली है, हमारे पास जो भी चीजें आएंगी, वो उनको प्राप्त करने का, उनके साथ एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, उनके दुख में शामिल होने का, उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीका है उनके साथ हमारा। क्योंकि द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो अपने साथ जो रिश्ता है ना, अगर आपका अपने साथ रिश्ता अच्छा है तो आपका औरों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा ही। तो हम लोगों को उस लेवल पे पहुंचना है कि वी सी आवरसेल्व्स इन अदर्स। हम लोगों को खुद को औरों में देखना है। कुछ में अगर मैं अपने हस्बैंड में वो चेंज चाहती हूँ कि वो बहुत प्यार से सबसे बात करे, मुझे वैसा बनना पड़ेगा। सो दिस प्रैक्टिस इज अबाउट दैट। सो मुस्कान विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। यस मुस्कान, स्टार्ट फ्रॉम योर। Good morning, everyone. Thank you, Priya ma'am. Thank you so much. Day 3, Magical Relationships. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be a what would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationships to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage,
it will most likely end in divorce. Muskan, just a moment, we'll take a pause here. So हम लोगों को यहाँ पर रॉन्डा वन बोल रही है, we all know this, we are all in this particular stage of our life that we know the significance of our relationship, है ना? हम सभी को पता है कि रिलेशनशिप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है. हम सभी ने वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी, वो राजा वाली, वो पत्थर मिला था, वो पारस पत्थर वाली, पारस पत्थर उनको मिला था एंड उन्होंने क्या किया, उस पत्थर से सभी चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया. तो उनको इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का और इतना ज्यादा अपने अपने किंगडम को विस्तार करने का था, तो उन्होंने सब चीज को छूते, पत्थर से किसी भी चीज को छूते तो वो गोल्ड का बन जाता. तो इसी तरह से उनकी डॉटर उनके पास आई, उनकी डॉटर बहुत खुश थी, उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी डॉटर को इतना कुछ दे पाऊंगा, मैं अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ कर पाऊंगा एंड कर रहा हूँ. उनकी डॉटर उनके पास आई तो वो भी पत्थर में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज उनके पास वो पारस पत्थर था, जिनको पत्थर में नहीं गोल्ड में कन्वर्ट हो गई वो. सो इतने सारे चीजों का हम करेंगे क्या? हमारी अगर हेल्थ बहुत अच्छी है तो हम उसको हेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी विल बी नीडिंग समवन ना, विल बी नीडिंग आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स. हम अपने फ्रेंड्स के साथ मान लीजिए हाइकिंग पे जाते हैं, कहीं जाते हैं. सो वो कब होगा? जब हमारे फ्रेंड्स हमारे लाइफ में होंगे ना, जब देर इज अदर पर्सन, आई एंड यू भी तो होना चाहिए ना. फर्स्ट पर्सन तो हम लोग हो गए, लेकिन सेकंड पर्सन भी तो चाहिए, एंड सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन भी चाहिए. आई, यू एंड वी, राइट? तो ये तीनों लोग होने चाहिए हमारी लाइफ में. इसी से हमारी आइडेंटिटी होती है. तो हम लोगों को इस दुनिया में लाने वाला भी कोई है, हम भी किसी को इस दुनिया में लाएंगे. दिस इज द एवोल्यूशन दैट वी आर हैविंग, है ना? शुरू से लेकर अब तक हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं. सो रिलेशनशिप्स के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सबसे पहले अपने रिश्तों पे काम करें. हमारे पास पैसा कितना भी ज्यादा हो, हमारे पास हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके मायने तभी बढ़ते हैं इफ वी हैव वंडरफुल रिलेशनशिप्स, द रिलेशंस व्हिच आर एनरिचिंग. आप सभी को खुशी दे पा रहे हो, उनकी खुशी में जैसे आप खुश होते हो, या उनके गम में जब आपको लगता है कि नहीं, मतलब वो दुखी है, तो आप उसको सोल्यूशंस देते हो कि इस तरह से हम उसको कर सकते हैं. कोई आपसे गुस्से से बात भी करे तो आपको गुस्सा नहीं आता, वो परफेक्ट रिलेशनशिप है. आप तब ये सोचते हो कि उस इंसान ने, यू आर गोइंग इनटू देयर शूज एंड यू आर थिंकिंग दैट दैट पर्सन, इफ ही हैज डन समथिंग फॉर यू, और if he has done something wrong, that is because he has this thing in his subconscious mind. Actually he is suffering from that problem. अब जिसके पास प्रॉब्लम्स हैं वो सबको प्रॉब्लम ही देगा, जिसके पास सॉल्यूशंस है तो वो सबको सोल्यूशन ही देगा. तो उनके पास प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास तो सोल्यूशन है ना. आप तो उस रिश्ते को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो ना, उस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना. सो दैट इज टुडेज प्रैक्टिस, दैट वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी रिलेशन दैट वी हैव, एंड दैट टू द क्लोजेस्ट वन, जिनका हमारे लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस होता है कि हमारा जो इमोशंस हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, उनके कारण चेंज हो जाते हैं. सो वो हमारे लाइफ में इतने ज्यादा इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला कदम क्या है? वी डू नॉट हैव टू लुक ऑन देयर मिस्टेक्स. उनकी मिस्टेक्स नहीं देखनी है हमने. अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमने अपने अंदर देखना है. वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स कि हम क्या करते हैं उस जगह पे अगर होते तो. एंड दिस थिंग इज वन थिंग. अनदर थिंग, अगर हम उनसे उनकी गलतियां निकालते रहते हैं तो हमें एक बार ये सोचना, जस्ट थिंक कि अगर जिस इंसान की हम गलती निकाल रहे हैं, just suppose if he doesn't have, like he doesn't has an existence in your life anymore. मैं अगर मान लीजिए किसी के साथ भी, अपना कोई फ्रेंड है, कोई अपना रिलेटिव है बहुत क्लोज, तो मैं अगर ये सोचूं कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, क्यों किया, लेकिन अगर मैं अपने लाइफ को उनके बिना इमेजिन करती हूँ तो आप ये देखिए कैसा लगेगा. जिसकी हम लोग बार बार गलतियां निकालते हैं. अपने मूड खराब है मेरा, तो मूड खराब के कारण मैं अपने हस्बैंड को मान लीजिए ब्लेम करूं कि उसके कारण मेरा मूड खराब है, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को मेरा मूड खराब कर दे. क्यों? आप फिर, अगर इसका मतलब ये है कि ना, इनडायरेक्टली आप क्या चाहते हो? डायरेक्टली या तो आप ये बोल रहे हो कि माई मूड इज अपसेट बिकॉज माई हस्बैंड डिड नॉट डू गुड थिंग टू मी टुडे, है ना, या माई चाइल्ड वॉज वेरी अनोइंग टुडे, वट एवर इट इज. बट कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट देम? Can you imagine your life without the person who is you are in relationship with? Be it the relationship of your mother, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपके भाई बहन, आपका फ्रेंड.
क्या आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को उनके लाइफ के साथ ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना हम लोग। तो इसके लिए हमें उनको जैसे वो है, वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, एंड we have to make changes in our personality, in our character, to see themselves like that. Others को हम लोगों को जैसा हम चाहते हैं वैसा बन के दिखाना पड़ेगा, तभी वो चीज उनके ऊपर आएंगी। अगर हम आज चाहते हैं कि मेरा बच्चा कंप्यूटर में, फोन्स में, सोशल मीडिया पे इतना टाइम ना स्पेंड करे, इतना टाइम ना वेस्ट करे, मुझे अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही होंगी सोशल मीडिया पे और इस पे उस पे, मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड ऑफिस से जब आता है वो ग्रम्पी होकर ना आए, तो मुझे अवेलेबल रहना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा कोशिश करना पड़ेगा कि while I am working the whole day and when my husband comes in, तो I become welcoming to him, कि मैं भी उसके लिए वेलकमिंग बनूंगी, तभी वो मेरे लिए वेलकमिंग बनेंगे। In a nutshell, we have to change ourselves to get people changed as yourself. अगर आप चाहते हो कि वो मेरे जितना कंपैशनेट नहीं है, उसको मेरे जितना कंपैशन होना चाहिए, यू बिकम कंपैशनेट। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। Do not blame others for your challenges, for your problems. It's only because of you. So this thing we have to see, like we have to direct it into our subconscious mind. That is the reason for today's practice, that you have to bring magic in each and every relationship. तो इसके लिए हम लोगों ने यही किया है, जैसे मुस्कान ने भी पढ़ा है, कि हम लोगों को हर एक मिस्टेक, हर एक, अगर किसी और में कोई मिस्टेक देख रहे हैं और उसके लिए हमने बार बार कंप्लेन करी है, तो एक कंप्लेन के लिए हम लोगों को 10 ब्लेसिंग लिखना पड़ेगा। जब अपने आप को हम ये टफ टास्क देंगे, कि प्रैक्टिस तो हमारी आज है 5 लिखने के लिए ना, लेकिन इफ वी आर डूइंग any complaint for another person, then we have to write 10 blessings for that person. लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नेगेटिव में, माइनस में चले जाएंगे। चाहे वो आपने फिर काउंट माई ब्लेसिंग्स में ये लिखा हो कि आई एम सो थैंकफुल फॉर, लाइक थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द जॉय ऑफ बीइंग मदर। अगर मान लीजिए लिखा है आपने, लेकिन वो मदर आप हो, लेकिन आपने आपके अपने बच्चे के लिए आपने कंप्लेन किया है कि ही इज नॉट डूइंग दैट, तो इसका मतलब योर ब्लेसिंग रेलिंक्विशेस वहीं पर खत्म। आपको उसके लिए 10 ब्लेसिंग लिखना पड़ेगा, 10 बार उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा, तब आपका वो चीज जो है ना, आपके वो जो आपने पॉइंट लिखा है वो तब आपका वाजिब रहेगा, ऐसे का ऐसा। So we do not want that, right? We do not want our blessing to be transformed into a mistake. What we are doing is we are transforming the mistakes into blessings, but we won't do that other way, right? तो उसके लिए हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को कंप्लेन्स नहीं करने हैं किसी भी रिश्ते को लेकर। जो भी होता है, everything is because of us. We are the only reason for everything. We are one. We have to believe in that oneness, that one consciousness. If my son has done a mistake, then it is because he is no different person. He is just me. He is Priya. उसको वो प्रिया ही है। अगर मेरी फ्रेंड ने कोई मिस्टेक किया है तो वो भी प्रिया ही है। मैं उसको अपने आईने में देखूंगी, मैं मिरर में देखूंगी। दिस इज द थिंग। अगर आप औरों के अंदर भी खुद को देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे हम लोग एक से हुए हैं, एंड वी आर अगेन गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर, लाइक एंट्रोपी तो होती रहती है ना। एंट्रोपी इज द प्रोसेस दैट्स कंटिन्यूअस, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी हैव इवॉल्व फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्मॉल डॉट, दैट यूनिवर्स, और उसके बाद अभी कंटिन्यूअसली वेरेवर वी आर, एंट्रोपी इज गोइंग ऑन। तभी तो जो हम लोग, हमारे अवतार्स भी होते हैं, वो भी तो अपना देह त्यागते हैं ना, इसीलिए तो त्यागते हैं, क्योंकि वी आर अगेन गोइंग इनटू द एंट्रोपी एंड वी आर अगेन गोइंग टू द वननेस। तो उसको हम लोग सोचेंगे ना, तो हम लोगों के लिए माफ करना, औरों को अकोमोडेट करना इजी हो जाएगा। औरों के लिए एम्पैथी लाना, कंपैशन लाना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी डू नॉट हैव टू जज एनीवन। हम लोगों को किसी को जज ना करके कीप योरसेल्फ इन देयर शू। उसके बाद यू विल कम टू नो कि why that particular person has committed that mistake. We often say to our kids that we used to do this. हम लोग तो अपने स्कूल्स में इतना पैदल चल के जाते थे, now you are going, हम तुम कार में जाके ड्रॉप करके आते हैं, you have got so many luxuries, करते थे ना। लेकिन हमारा जमाना और वो जमाना, ये वाला जो जमाना है वो अलग है। यहाँ पर चैलेंजेस अलग है। हमारे टाइम पे चैलेंजेस अलग थे, इनके टाइम पे चैलेंजेस अलग है। तो जस्ट ट्राई एंड कीप योरसेल्फ इन देयर पोजीशन।
then you will come to know that what are the challenges they are facing right now. They are like, इतना communication इतना हो ही नहीं पा रहा है ना, जो one to one communication, they are communicating with the mobiles or with their this thing, any device or on. They are not going out to play. We used to go out to play. हम लोग अपने फ्रेंड से मिलते थे, खेलते थे, मूवी जाते थे, बट आज क्या कर रहा है बच्चा? वो अपने फोन में मूवी देख लेता है. तो he lacks that human attention ना. So he is getting towards machine only. मशीन एक होता जा रहा है. इमोशन, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो इतने कंपैशनेट होते थे अपने पेरेंट्स के लिए, बट दे आर नॉट. वो इतने कंपैशनेट ही नहीं है आज के बच्चे. क्यों नहीं है? क्योंकि वो दे आर ऑलवेज सराउंडेड विद दिस डिवाइसेस. वो ह्यूमन कांटेक्ट में आ कहाँ रहे हैं वैसे करके, जैसे हम आते थे हमारे टाइम पे. सो वी डू नॉट हैव टू डू दैट. हस्बैंड्स के लिए अगर हमें लगता है कि वो सारा दिन चिक चिक करते रहते हैं, ये करते हैं, अब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु स्टे एट होम, तो उनको पता है वो कैसे वहां पर आके टॉयल करके आते हैं, फिर यहाँ पर आके जब ऐसा मिलता है, मान लो स्कैटर्ड मिला, कुछ मिला, तो दैट टाइम वी हैव टू बी अकोमोडेटिंग. ओके, इट्स ओके, बैठो, उसी टाइम उसको रिवर्ट ना करके उसके लिए अच्छा सोचो. एंड हमारे पास तो लाइफ चेंजिंग टूल्स हैं ही. कुछ बोल रहे हैं हस्बैंड, कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, अपने मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. उन्होंने जो बोला ना, उन्होंने बोला कि खाना बहुत बेकार बना है, फ्लिप कर लो ना, सुनो ये कि हाँ खाना तो बहुत अच्छा बना है. सो लाइक दैट वी हैव टू फ्लिप द थिंग, बिकॉज ही इज योर सेल्फ, ही इज अ पार्ट ऑफ यू ओनली. ही इज मेकिंग मिस्टेक, यानी कि यू आर डूइंग दैट. हाउ वुड यू करेक्ट योर सेल्फ? You would correct yourself ना, by looking into yourself, की introspect करके कि हाँ भाई मैंने ये किया. So why not him? हम लोग उनको भी ऐसे accommodate कर सकते हैं ना. We have to be empathetic. अब जैसे मान लीजिए कि मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, हम लोग उनके लिए तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, टोकती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, लालची है, ये है, वो है. लेकिन यू नो व्हाट, आप जितना ज्यादा बोल रहे हो, जितने ज्यादा कंप्लेन्स कर रहे हो, you are not looking towards her positive point. You are focusing your energy into that negative. तो obviously that will increase. उनके लिए आपका व्यवहार और आपके लिए उनका व्यवहार डिटियोरेट होता जाएगा. So this is the thing Rhonda Byrne wants to say, कि do not ever complain about any of the relationship, because इतना hard word जो उन्होंने divorce use किया है, वो इसीलिए कि अगर हम लोग खाली कंप्लेन करते रहेंगे तो उसमें अच्छाइयां हमें नजर ही नहीं आएंगी. तो हम लोग उसको रिवर्ट कर देते हैं ना, हम लोग उसको फ्लिप कर देते हैं ना. वो फ्लिप करके हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग ब्लेसिंग ही करेंगे, हम लोग अप्रिशिएट ही करेंगे. आप जितना अप्रिशिएट करोगे ना, वो पर्सन वैसा ही होता जाएगा. बिकॉज आवर थॉट्स आर सो मच वाइब्रेशनल. मैं जो बोल रही हूँ वो आपके तक इसीलिए तो पहुंच रही है क्योंकि साउंड एनर्जी के कारण ही तो पहुंच रही है. माई साउंड एनर्जी इज गेटिंग ट्रैप्ड एंड इट्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू यू. तो आप सोचो, इसी तरह से अभी भी बहुत सारे रिसर्चेस चल रही हैं इसी चीज में कि हाउ थॉट्स आर चेंजिंग आवर लाइव्स, हाउ आवर वर्ड्स आर इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइव्स, हाउ दीज थिंग्स आर पेनिट्रेटिंग इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो इट्स लाइक दैट वी हैव टू थिंक अपॉन दिस, कि हम लोगों की वर्ड्स कैसे हो, हमारे थॉट्स कैसे हो. अच्छा, हम लोगों को कई बार लगता है कि डायबिटीज अगर मेरे पापा को है तो मुझे भी हो जाएगा, या मेरे मम्मी पापा को हाइपरटेंशन, दोनों में से किसी एक को है तो मुझे भी हो जाएगा, तो इसी तरह की चीजें. लेकिन वो एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता है. द थिंग दैट वर्क्स इज द एनर्जी दैट यू गिव. अगर आपके घर में जैसा माहौल होता है, वो जेनेटिक के हिसाब से नहीं होता, दैट्स एपिजेनेटिक्स. वो हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोगों को उनके हाव भाव को देखते हैं, हमारे फूड हैबिट्स वैसे हो जाते हैं ना. कहते हैं ना कि लाइक इफ यू आर ईटिंग, लाइक इफ यू हैव अ स्वीट टूथ देन योर किड विल आल्सो हैव दैट. क्योंकि हमारे घर में वो चीजें बन रही है ना. बिकॉज माई किड्स आर वॉचिंग मी ऑल द टाइम, दे आर लाइक वॉचिंग मी कि मम्मा तो मीठा ज्यादा खाती है, तो उसी तरह से भी उसका हैबिट डेवलप हो जाता है. दिस इज नथिंग लाइक कि भाई मेरा अगर जीन्स में है तो मुझे होगा ही. क्यों ऐसा बोलते हैं? बायोलॉजी में भी क्यों ऐसा बोलते हैं कि बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शन, हम लोग पढ़ते ही है ना, कि बायोलॉजी में भी ऐसा बोलते हैं कि अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पीपल विल गेट दैट. So why not the rest of the percentage of people who will get that? It's because that's not there in their thoughts. Whatever is in your thoughts, it will get actualized very soon. Then why not make our thoughts that positive, that we get and transformed into a positive being totally? We make our being a total positive being. That we can do only by putting positivity into our mind, only by focusing on the positives, on the people around us, only by focusing on the good things in our life, and that will make us a transformative person.
खुद भी हम लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, साथ में औरों को भी करेंगे. So yes, Muskan, start from here. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point Just a where you moment, won't. मुस्कान, एक मिनट मुस्कान. मैं ना वो किसी को मैंने को होस्ट नहीं बनाया, वो मैं भूल गई बनाना. भारती आ रही है. भारती, लाइक आई एम मेकिंग यू द को होस्ट. I'm sorry for this glitch. Thank you, Muskan. Please carry on. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. By Thornton Wilder, writer and playwright. Yeah, this quote is so beautiful, no? कि हम लोगों को अपने पास जो ट्रेजर्स हैं, जो खजाना है, उस पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में कॉन्शियसली सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड वाइनिंग अबाउट द थिंग. सो दिस थॉर्टन विल्टर पर्सन, ही वाज सच अ ग्रेट राइटर. उनको 3 बार पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है, लिटरेचर के कारण मिलता है वो जो. सो दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. एंड दैट पर्सन, मतलब रोंडा वन हैज कलेक्टेड सो मेनी थिंग्स, लाइक इतने अच्छे अच्छे लोगों के विचार उन्होंने इंक्लूड करे ना इस बुक में. दैट्स व्हाई दिस बुक है ना इतना ज्यादा पावरफुल बुक, वो इसीलिए है कि इतने सारे एमिनेंट लोगों के उन्होंने विचार इसमें लिखे हुए हैं. सो दैट्स मेक, लाइक आई रियली, आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव दिस बुक इन माय लाइफ. सो यस, हम उसका पढ़ो. Words are very powerful. So, when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and the teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person choose to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person.
What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list of for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word. Thank you and the person's name. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now, you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. Point number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, choose 3 of your closest relationships and collect the photograph of each person. Point number 3, with the photo in front of you, write 5 things you're most grateful for about each person in your journal or on your computer. Point number 4, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Point number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and then thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Point number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Muskan. Thank you Priya, so will you much please for. make me co-host again? It should Okay, yeah. okay. You Thank you. had a bad connection. Okay. No, I just changed my device. I joined Okay, from okay. laptop now. Okay, got it. Yes. So thank you so much, Muskan, for reading so beautifully. बहुत अच्छा लगा. बस अगली बार थोड़ा सा ऐसा करना कि make yourself comfortable in a place where there is no noise around, है ना? पीछे से थोड़ा सा noise आ रहा था.
Very well. भारती मुझे म्यूट कर दिया. So yeah, so let's come back to the practice today. So हम लोगों ने क्या करना है कि we have to learn empathy and compassion. बहुत जरूरी है. When we are writing for someone, when we have this thought ना कि भाई किसी ने मेरे साथ क्या किया है, कुछ किया है, तो हम लोगों को अपने मन में empathy लाना पड़ेगा कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो there might be some reason behind it. अगर योर मदर इन लॉ लव्स हर सन वेरी मच, इंस्टेड ऑफ लाइक थोड़ा सा तो फर्क होता है ना कि अपना बेटा तो अपना बेटा होता ही है, उनको उन्होंने अपने अंदर से निकाला है, ही इज लाइक हर पार्ट. तो अब हम लोगों को वी शुड बी दैट अकोमोडेटिंग कि अगर हमारा हस्बैंड आके अपने मॉम के साथ बात करता है तो हम लोगों को ऐसा ना लगे कि यार मतलब द होल टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर मॉम, हमारे खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं डॉल. नहीं, आप अगर ऐसे सोचोगे तो ऐसा होगा. मत सोचो ऐसा. उसका भी हक बनता है कि वो अपने बेटे के साथ बात करे. उसके उसके हस्बैंड की भी मतलब आपके हस्बैंड की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने मॉम के साथ बात करे, बिकॉज पेरेंट्स आर द पर्सन्स हु ब्रॉट अस इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. वी हैव टू बी रिस्पेक्ट फॉर, वी हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर देम. अगर ऐसा लगता है कि पापा जी तो कुछ नहीं बोलते, मम्मी जी ही बोलती रहती, नहीं, वो इसलिए क्योंकि मदर्स आर वेरी इमोशनल, यू नो, दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू द किड्स. हम लोग भी अपने हम लोग अच्छा मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लाइफ के उस स्टेज में आएंगे तब पता चलेगा कि हम लोग क्या करते हैं. And due to this gratitude journey, due to this beautiful magic book in our life, we are going to transform us absolutely brilliant way. But हम लोगों को भी we have to be compassionate up towards everyone we meet, be it our parents, be it our kids, be it our like spouses, किसी के लिए भी. और इसके साथ साथ आपके वर्क प्लेस में भी आप कितने कंपैशनेट और काइंड हो और एम्पैथी रखते हो, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि व्हाट पर्सन यू आर गोइंग टू बी. इफ यू आर अ बॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप बॉस हो एंड आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको बार बार ऐसे किचकिच किचकिच तुम अच्छे से काम नहीं करे, तुम्हारा काम आज अच्छा नहीं है, या इस तरह से अगर करते रहो तो क्या होगा, वो पर्सन दुखी हो जाएगा. और दुखी होके दैट द यू नो द एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विल डिट्योरेट. इवेंचुअली इट विल डिट्योरेट, बिकॉज वो आप ग्रम्पी हो तो आप वो ग्रम्पी वाला ही जो है ना अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो उसको, वो उसी चीज को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो आप जैसा एनवायरमेंट रखोगे तो एवरीवन विल फ्लोट इनटू दैट एनवायरमेंट, है ना. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, आप उसको पूछ सकते हो कि क्या बात है, आज घर पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या, लाइक व्हाट लाइक इफ यू वांट टू शेयर देन इट्स ओके. नहीं चल रहा तो यू टेक अ ब्रेक, सम टाइम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 15 मिनट ले लो. आप देखना उसी से उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, बिकॉज यू वुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर वर्कर. मेड आती है घर पे, वो कई बार ऐसे खाने में नमक डालना भूल जाती है, या फिर मान लो लीजिए कोई काम किया, वो बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ अटरिंग बैड वर्ड्स टू हर या फिर उसको ऐसे नेगेटिव एनर्जी देना कि तुम तो हमेशा ऐसा करती रहती हो, किचकिच करना, यू जस्ट ट्राई एंड टॉक टू द पर्सन कि क्या बात है, कि मतलब मूड तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है. तो देर मस्ट बी समथिंग ना, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उसने ऐसा किया है. तो हम लोगों को वो कंपैशन लाना जरूरी है अपने लिए. तो कंपैशन अगर आप लाओगे द उसका जो साइड इफेक्ट ये रहेगा कि एवरी रिलेशनशिप दैट यू हैव इन योर लाइफ विल टर्न इनटू गोल्ड एंड ब्यूटिफुल. दैट्स अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट. मेरे को सभी ना ऐसे कहते थे तुम तो गाय हो, यू आर लाइक, हम लोग जो काइंड अगर कोई पर्सन है ना, तो वी ऑलवेज हैव दिस थिंग कि वो बुद्धू है, वो बुद्धू है, उसके लिए ये वाला सेंटेंस निकलता है. तुमको तो लाइक हमेशा कोई ऐसे कहेगा तुम तो गांधी हो, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो व्हाट यू कॉल गाय हो. कि नहीं, कंपैशन आपको ह्यूमन बनाता है. कंपैशन ब्रिंग्स द ह्यूमैनिटी इन योर कैरेक्टर. दैट्स इंपॉर्टेंट टू मेक ईच एंड एवरी रिलेशनशिप अराउंड यू फ्लरिश. So if you are compassionate, if you are empathic, then you will see the compassion in that particular person also. If he could not do something, अगर आपका कोई भी रिलेशन, जैसे मान लीजिए आपका बेटा आज थोड़ा ग्रम्पी है, तो आपको उसके कारण पता चले जाएगा कि he might have gone through a lot in his childhood, और स्कूल में कुछ हुआ होगा, किसी बच्चे ने उसको बुली किया होगा, या कुछ इस तरह का टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया उसको जो उसको अच्छा नहीं लगा होगा. So it might be the reason for his grumpiness. So what you will do is you will write and say thank you to the person for what he does. कुछ उसने खराब बात बोला ना, तो भी आपने क्या करना है, उस बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है.
आपने हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में जाके आपने ये देखना है कि उसने आपके लिए क्या क्या अच्छी चीजें करी हैं। इफ यू लव योरसेल्फ यू विल बी लव्ड। आप हमेशा ये बोलो, आई एम वर्दी ऑफ गेटिंग ऑल द लव फ्रॉम द यूनिवर्स। ये आप अपना रखो, अपना जो टॉक वाला है, सेल्फ टॉक है, वो रखो कि आई एम लव्ड बाय एवरीवन अराउंड मी, है ना, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट लव दैट आई एम गेटिंग। सो वो आप करते रहो। कोई बच्चा कुछ कर रहा है कि ना, मैं एक बार मैंने वर्षा से बात करी थी, तो वर्षा से बोल रही थी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो मैं अपने मन में ना कुछ बोलती रहती हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो मुझे अपने मन के अंदर ना मैं वो चलाती रहती हूँ, कैसेट अपनी चलाती हूँ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू राज फॉर टॉकिंग टू अर्चित लाइक दिस, इस तरह से मैं बोलती रहती हूँ। तो उसमें क्या है ना कि आप वो जो अपना जो उसका जो ग्रम्पीनेस है या उसका जो एंगर है ना, आप उसको ड्रिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द टूल। हम लोगों को माइंडफुल रहना पड़ेगा और अपने टूल्स जो है उनको यूज करना पड़ेगा। वो टूल्स को यूज करके ही हम वो वाले ब्लिसफुलनेस में पहुंच सकते हैं। सो फॉर टुडेज प्रैक्टिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ आवर लव्ड वंस। जो भी हमारे लव्ड वन है उनकी फोटोग्राफ हमने लेने हैं, जिनसे हमारा लाइफ जो है इन्फ्लुएंस होता है, उनकी हमने फोटोग्राफ लेनी है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ना, चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। तो उनको लेकर उनके साथ हमने रिश्तों को बहुत अच्छा बनाना है, उसके लिए ये प्रैक्टिस है। सबसे पहले आपने उनकी फोटो हाथ में ली। हाथ में अगर फिजिकल फोटोग्राफ नहीं है तो आपने मोबाइल में लिया, डिजिटल में लिया, तो उसको पहले रखा साइड में। आपने आंखें बंद करके ये सोचा, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हम मैकेनिकली करते जाएं। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फीलिंग आर द फ्यूल, राइट। तो वो फीलिंग के साथ हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, जो भी लिखेंगे ना, तो दैट इज गोइंग टू मेक अ रिमार्केबल चेंज इन द रिलेशनशिप दैट यू हैव। थोड़ा सा स्पैट अगर हो गया हो, कुछ ऐसे कहा सुनी हो गई हो, तभी आप लिखना शुरू कर दो। आज की प्रैक्टिस तो ये है कि एक साथ बैठ के 3 जनों के लिए लिखने की, है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन कोई आ जाता है कि यू हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट विद एनी ऑफ योर लव्ड वन, तो आप उनके नाम से आप उनके ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखो। मैं हमेशा करती हूँ ये कि कुछ भी ऐसा हो तभी के तभी उनके लिए 3 पॉइंट्स लिख देना, बल्कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि डेली आई डू दिस प्रैक्टिस। सो हमने पहले पर्सन के बारे का फोटोग्राफ लिया, उसके बारे में सोचा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया हुआ है। तो आप जैसे मान लीजिए मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में अगर उनकी फोटोग्राफ लेती हूँ, तो उनके लिए मैं लिखूं, मैं ऐसे सोचूंगी कि हाँ भाई उन्होंने ये किया है, उन्होंने मेरी इस तरह से हेल्प करी। जब मैं अपने मम्मी के लिए जा रही थी वहां पर, तो पापा जी ने मेरे को बोला कि बेटा तू मेरा वॉलेट ले जा, मतलब तू मेरा कार्ड ले जा एंड जितना चाहते हो तुम उसमें से खर्च करो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे मैंने उस पर्टिकुलर उनके कार्ड से कोई एक भी पैसा यूज नहीं किया था, लेकिन वो कंपैशन और वो जो उन्होंने मुझे इतना तसल्ली दी थी कि बेटा तुम जाओ, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो वो उन्होंने बोला था, तो वो मुझे याद है। फिर मुझे ये याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी, तो हमारे हरियाणा में ना वो करते हैं, चुन्नी चुन्नी करना पड़ता है, पर्दा करना पड़ता है टाइप, पहले करते थे, अभी आजकल नहीं करता कोई भी। बट व्हेन समवन फ्रॉम गांव से आने आ रहा होता है कोई, तो फिर आपको करना होता है। पर पापा जी ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, कभी भी तुमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज अ ग्रेट लिबरेशन मुझे लगता, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां से अगेंस्ट जाके आप कोई चीज कर रहे हो ना, दैट्स समथिंग अलूफ, दैट कीप्स यू अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी ना। तो वो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ अपने पापा जी के लिए। फिर उसके बाद जो भी हूँ, कभी वो बात कर रहे होते हैं ना, हमेशा ही विल इंक्लूड मी इन देयर टॉक्स, इन देयर फैमिली टॉक्स। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता होता था उन चीजों के बारे में कि जो भी पहले हुआ है, लेकिन ही यू ऑलवेज यूज टू गिव मी प्रेफरेंस कि बेटा नहीं, तुम आओ, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। बिल्कुल शुरुआत की बात बोल रही हूँ, यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ, तो तुम इस बात में इंक्लूड होना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही ऑलवेज गेव मी दैट रिस्पेक्ट दैट आई डिजर्व इन द फैमिली, सो आई विल राइट फॉर मी। तो इस तरह से 5 चीजें मैं निकाल के उनके लिए रखूंगी। आप वो मेरे लिए कोई ड्रेस लाते हैं, कोई कभी उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे प्रेजेंट दिया कि बेटा ये लो, ये इतने 40,000 रुपीज है, तुम जाके स्पेंड करो, तो ये चीजों को मैं लिखूंगी। इन चीजों को मैं 5 पर्टिकुलर चीजों को मैंने लिखूंगी। लिख कर मैं अगले पर्सन के पास जाऊंगी। अपने पापा जी की फोटोग्राफ देखी मैंने, उनके लिए पॉइंट्स लिखा, फिर नेक्स्ट पर्सन के पास गई मैं। सेकंड मान लीजिए मैंने अपने बेटे का लिखा, बेटे के बारे में सोचा कि लाइक अर्चित नाम है, नाम लो जो आप नाम बोलते हो ना, जैसे पापा जी को मैं पापा जी बोलती हूँ, तो पापा जी, थैंक यू पापा जी फॉर दिस, थैंक यू पापा जी फॉर दिस, इस तरह से मैं 5 पॉइंट्स मैं लिखूंगी उनके बारे में। सेकंड, मैं फोटोग्राफ अपने बेटे का लूंगी। मान लीजिए बड़े बेटे का लिया, तो बड़े बेटे का नाम अर्चित है, तो उसको मैं सोचूंगी अर्चित क्या क्या करता है मेरे लिए।
अर्चित ना बचपन से बिल्कुल छोटे से ही इज सच एन ऑब्जर्वर ना. ही विल लाइक इन अ स्नैप ऑफ फिंगर ही कैन से दैट व्हाट इज द मेंटल स्टेटस ऑफ योर्स राइट नाउ. कभी भी मेरा मूड ऐसा वैसा हुआ तब भी डिटेक्ट कर लेगा. मेरे हस्बैंड शायद नहीं कर पाए उतनी जल्दी जो कि मेरा बच्चा कर लेता है, अर्चित कर लेता है. तो आई विल राइट दैट कि ही इज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स मी. ममा आप ठीक तो हो? ऑलवेज ऑलवेज, मतलब कभी उसका मूड भी खराब हो सकता है कभी, लेकिन ही विल ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ मी. मम्मा ठीक हो आप? और जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा कुछ होता है घर में, या फिर लाइक आई पास थ्रू लाइक आई गो थ्रू सम डिफिकल्ट सिचुएशन, ही विल ऑलवेज हग मी. ये मैं याद करूंगी उसके बारे में. ही इज सो क्रिएटिव कि वो उसको खाना बनाने का भी बहुत शौक है. तो सैंडविचेस में पहले क्या करती थी ना मैं, जैसे रॉ सैंडविच जब बनाते हैं ना रॉ वेजिटेबल्स का, तो आई यूज टू कुक बोथ द साइड्स ऑफ द सैंडविच विद द वेजिटेबल्स विद इन, लाइक सब वेजिटेबल्स को अंदर रख के मैं कुक करती थी पहले. बट अर्चित ने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे मत करो, आप दूसरे तरीके से करो. आप पहले अलग अलग ब्रेड को टोस्ट कर लो, फिर उसमें वेजिटेबल्स डालो और फिर करो. एंड इट टेस्ट डिवाइन, यू नो. तो आई ऑलवेज थैंक हिम फॉर दैट कि थैंक यू, आपने वो जो वेजिटेबल सैंडविच बनाने का जो क्रक्स बताया ना, बहुत अच्छा लगा मुझे. वो आपके जो ब्रेड है वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ और एकदम जूसी रहते हैं. सो ही टॉट मी दैट. तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका थंबनेल बनाने के लिए भी उसने मुझे बहुत बहुत क्रिएटिव है, उसने उसमें भी मुझे हेल्प किया था. हिज कम्युनिकेशन स्किल्स इज सो ब्रिलियंट ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी इंडियन बच्चे से बात कर रहे हो या कि किसी ब्रिटिश से बात कर रहे हो. ये सब चीजें हैं उसमें. तो अगर उसने एक दिन कभी कोई गलत काम कर भी लिया है, आज मान लो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है, तो मैं क्या करूंगी, उसके वो 5 पॉइंट्स लिख दूंगी. कोई भी 5, बहुत सारे, लाइक देर आर प्लीथोरा ऑफ पॉइंट्स, लाइक उनको मैं लिखूंगी. 5 पॉइंट्स को भी चूज करके लिखूंगी और फिर मैं रख दूंगी. तो मैंने अर्चित के बारे में लिख दिया. अब मैं अर्पित के फोटोग्राफ निकाली मैंने, मेरा छोटा बेटा है जो अर्पित, उसकी फोटोग्राफ निकाली मैंने. सोचा कि अर्पित क्या करता है. अगर मान लो उसने आपके लिए कुछ किया भी नहीं हो, तो वो ट्रस्ट तो है ना, वो मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास तो करता है ना. ही ट्रस्ट मी विद हिज सीक्रेट्स. ही शेयर्स विद मी लाइक वॉट एवर हैपेंस इन स्कूल. और उसके अलावा ही इज ब्रिलियंट इन स्टडीज. वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है. टीचर्स उसको हमेशा ऐसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो what he is bringing fame to us ना, वो हमारी फेम लेके आ रहा है. एंड ही इज सच काम एंड इंटेलिजेंट पर्सन. तो उसके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी मैं लिख सकती हूँ ग्रेटिट्यूड में कि थैंक यू अर्पित फॉर बीइंग सो कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन. ही वोंट टॉक टू मी लाइक, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करेगा वो मान लो, लेकिन हमारी जो मेड आएगी उसको जरूर नमस्ते आंटी कैसे हो करेगा. जैसे मान लीजिए कोरियर वाला कोई आता है, अगर मान लो मैंने कल इतना नोटिस किया, उसको भी मैंने अप्रिशिएट नहीं किया उस चीज के लिए, बट मैंने नोटिस किया कि आई वॉज इन क्वाइट हरी. कल का दिन थोड़ा सा ज्यादा हरी था मेरा. तो कुरियर वाला आया था कुछ लेके सामान, तो मैंने लेकर आ गई. थैंक यू तो मैं उसको बोलती, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच मैंने बोला, और अंदर आगे फटाफट कोई फोन आ गया था. फोन आते रहते हैं, फोन आ गया था. बट अर्पित वहां पर गया कि आज मैं भैया पानी लाऊं, क्या लाऊं बताओ. तो ही सेड कि नहीं नहीं भैया, अभी मैं बहुत जल्दी में पानी नहीं पीऊंगा, फिर पीऊंगा. तो ये इनकलकेट हम लोग कर रहे हैं ना अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों में. सो थैंक यू. अर्पित इज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन, बोथ माय किड्स आर. तो ये चीज मैं लिखूंगी उसमें कि हाँ भाई अर्पित थैंक यू. तो क्या होगा ना, जब हम इन पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, जो 5 चीजें वो हमारे लिए अच्छे से करते हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट जब हम करेंगे ना, तो उनके दो अगर उनमें खामियां भी है ना, वो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम वो 2 खामियों पे अपनी एनर्जी ना डालते हुए, उसके वो जो 5 जो ब्लेसिंग्स हैं उसमें, जो उसके अंदर जो खूबियां हैं, उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एंड बिलीव मी, एवरीवन हैज लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स इन हिम. थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, सब में होता है, मुझ में भी है, लेकिन सबके अंदर हम लोगों ने खूबियां ही देखनी है. अगर हम लोग किसी के अंदर जो उनकी नेगेटिव पॉइंट है उसको देखेंगे ना, तो लाइक अननोइंगली यू विल अट्रैक्ट इन योरसेल्फ आल्सो. अगर आप ये देखोगे ना कि मेरा बच्चा तो हमेशा जिग जिग करता रहता है, हमेशा उसको डिवाइस चाहिए, हमेशा सोशल मीडिया चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो आप देखना, आप अननोइंगली ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड कर रहे हो. और जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग फीड करते हैं, वी आर बिकमिंग दैट. कॉन्शियसली हम लोग वो करते हैं, है ना. तो हम लोगों ने यही करना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने के लिए आज का ये पर्टिकुलर जो हमारा जो आज का प्रैक्टिस है, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये करना है. बिकॉज कॉन्शियसली वी विल बी डूइंग टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप,
दैट थिंग विल सबकॉन्शियसली में अपने आप सीपेज हो जाएगी उसकी, अपने आप वो अच्छी अच्छी बातें जो है चली जाएंगी। तभी तो हम लोग रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं या सुबह उठ के ब्लेसिंग लिखते हैं, सो दैट हमारा कॉन्शियसली वो करके हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को ऑल्टर करते हैं। तो वो हम लोगों ने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में किया ना, ये हम लोग जागृत अवस्था में करेंगे। ये वाली बाकी जितने भी जितने भी हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम लोग सारे कॉन्शियस माइंड से करेंगे, कॉन्शियस माइंड से पूरे फीलिंग के साथ करेंगे, सो दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हमेशा अच्छी अच्छी बातें जाके डिपॉजिट हो। जो हमारे पुराने जो पैटर्न्स हैं वो हमारे धीरे धीरे करके बिल्कुल डिस्टॉर्ट होके उनके अंदर नए पैटर्न्स बन जाएंगे कॉन्शियसली, जब हम लोग कुछ भी अच्छा काम करेंगे। सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस। मुझे लगता है हमें प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी। सो सबसे पहला प्रैक्टिस हर रोज का लाइफ लॉन्ग हमारा यही रहेगा, काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। सो काउंट माई ब्लेसिंग्स में हम लोग 10 पॉइंट्स लिखते हैं, उन 10 पॉइंट्स को हम लोग बाद में रीड करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी राइट रीजंस फॉर दोज ब्लेसिंग्स। If like I am writing blessing for my husband, thank you Raj for loving me so much because of which I am a new person today, so I'll give a reason for that। ठीक है, हमेशा सेकंड में मान लीजिए हमने वाटर को लिखा, थैंक यू वाटर फॉर क्वेंचिंग माय थर्स्ट फॉर क्लीनिंग माय बॉडी, वाटर के लिए लिखा। उसके बाद थैंक यू आपने सन के लिखा, थैंक यू सन for providing us the vitamin D3 for drying our clothes, है ना, for giving us heat and light, for giving us the radiance that you have, for because sun is the ultimate source of energy on this earth, तो हम लोगों को पता ही है, तो हमने सन के लिए लिखा। तो इस तरह से हमने हर किसी चीज, मैम ने कहा ना कि डाइवर्सिफाई करना है, तो हम लोगों ने अलग अलग रोज पॉइंट्स लिखने हैं। हर उसके बाद हर एक पॉइंट को पढ़ के उसके लिए 3 बार आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। फिर हमारे आज के रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस आ गई है कि हम लोगों ने अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्लोजेस्ट जो हमारे रिश्ते हैं, जैसे आज मैं अपने फादर इन लॉ के लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए करूंगी, कभी मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, कभी अपने जो लाइफ है ना उनके लिए करनी है आज, जो दोज पीपल हु आर देयर इन योर लाइफ राइट नाउ, है ना, उनके लिए करनी है। जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये उन लोगों के लिए करेंगे, दोज हु आर लिविंग। एंड द फोटोग्राफ दैट विल टेक इज इट शुड बी देयर सोलो फोटोग्राफ, या फिर उसके साथ आप हो सकते हो, दैट विल बी बेटर। अगर आप ऐसा कर सको, नहीं है उनकी सोलो फोटोग्राफ ले लो, उसके साथ ही प्रैक्टिस करो। उनके बारे में 5 प्रैक्टिस, 5 हमने गुड पॉइंट्स लिखने हैं कि थैंक यू करके, थैंक यू अर्चित फॉर डूइंग दिस टू मी, थैंक यू अर्चित फॉर डूइंग दिस मी, थैंक यू पापा जी फॉर दिस, थैंक यू पापा जी, इस तरह से मतलब 5-5 करके। सबसे पहले आप लिखोगे, टाइटल डालोगे मैजिकल रिलेशनशिप, उसके बाद नंबर 1 आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, उसके 5 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स आ गए, उसके बाद सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन के नाम लिख दिया आप, जो भी नाम से आप बोलते हो, 5 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स आ गए, फिर थर्ड पर्सन उसके पॉइंट्स। फोटोग्राफ देख के हमने ये प्रैक्टिस करनी है। कंप्लेंट नहीं करनी है कभी भी कोई उनके बारे में। अगर हमने कंप्लेन करी, अगर गलती से कंप्लेन हो गया, कोई बात नहीं, रोंडा बन ने हमें हैक दे रखा है, हम लोगों ने उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिख देंगे पास, है ना। उसके बाद थ्रू आउट द डे, सो दैट वी स्टे इन दैट ग्रेटिट्यूड फीलिंग, हम लोग उनकी फोटोग्राफ को देख के दिन में 2 बार और निकाल के 3 हो जाएंगे टोटल। पहला हो जाएगा जब आपने लिखा, सुबह सुबह कर लेना ये प्रैक्टिस, और सेकंड टाइम आपने दोपहर को मान लीजिए उनकी फोटोग्राफ को निकाला और देखा, वो मोबाइल में देखा, और उसको थैंक यू पापा जी, थैंक यू अर्चित, थैंक यू अर्पित, जो भी आपने बोला वो, तब आपको कुछ बड़ा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, थैंक यू बोलने से काम चल जाएगा, इजी। सो और रात को तो हम लोग मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते ही हैं, तो हम लोग रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे। So this concludes the first chapter of third chapter of magic book. So now we will go to the second book, the hero that we are reading. तो second book हमारा पढ़ रही है रितु मैम। रितु मैम, you are there in the session, ना? Yes, I am, Priya. Thank Oh, you. happy birthday! I didn't see Thank you. you so much. Thank you. ठीक है, तो इन दिस हीरो बुक, एज वी ऑल नो, दिस हीरो जो बुक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ, लाइक इट इज एक्चुअली नॉट द स्टोरी ऑफ द 12 बिलियनर्स। यहाँ पर वो लोग ये बोल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हीरो जो है वो अपने आप को इवॉल्व किया है एज अ हीरो उन्होंने।
So obstacles do come in our life. These heroes are telling us how to overcome those obstacles in your life and go forward and move forward. And the topic that you will be reading today, that we all will be reading today, is absolutely fantastic because it is the thing that we are reading today is about gratitude only. कल हमने लेन बीचली के बारे में पढ़ा था, फिर हमने GM राव का पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से ग्रैटिट्यूड को एम्फेसिस किया है. तो हम लोग, हमारे पास तो इतना अच्छा टूल है ही. मतलब रोंडा बर्न ने फर्स्ट बुक में हम लोगों को जो टूल्स दिए हुए हैं ना, इतने साइंटिफिकली डिजाइंड है ना वो. मतलब आप ये देखो कितनी अच्छी तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने अमलगमेट कर रखा है एक तरह से, कि ग्रैटिट्यूड लाकर हम लोग किस तरह से अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ये भी उसी चीज को बोलेंगे कि 12 बिलियनर्स जो हैं वो भी इसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे कि हाउ वी कैन ब्रिंग ग्रैटिट्यूड एंड मेक चेंजेस एंड मेक अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो yes ma'am, we have to read from here. Anastasia. Anastasia Soar. Wake in the morning and count your blessings that you are healthy, you can walk, you can see, you can breathe. You can listen and actually dissolve all manner of seemingly negative situations like challenges, obstacles, and problems through gratitude. If you're facing a problem or you've hit a dead end and you can't see any way out, the act of deep gratitude will clear the way. It's as though your gratitude causes the universe to issue a free pass that enables you to jump over the obstacle. Suddenly, you find the obstacle you were facing diminishes and disappears, and your way ahead is made clear, or you find the solution. With it, the obstacle is overcome. Yes. So see how beautiful it is. मुझे इतना अच्छा लगा कि gratitude is a free pass for everything. जैसे मेट्रो में है ना वो फ्री पास मिल जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं यार. तो हम लोगों को तो पता ही है, जो the one who have read the magic book पहले से, तो हम लोगों को पता है कि how we are using and incorporating gratitude in all the realm of our life, in all the aspect of our life. हेल्थ खराब है तो gratitude, हेल्थ अच्छी है तो gratitude. अगर मान लीजिए करियर में कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो ग्रैटिट्यूड, पैसा कम है ग्रैटिट्यूड. उसके बाद हम लोग सोसाइटी को देते हैं, हम लोग नेचर को देते हैं, हम लोग लोगों को हम लोग एम्पावर करते हैं, हमको स्वस्थ करते हैं मैजिक वॉन्ड करके. सो ग्रैटिट्यूड इज एक्चुअली अ फ्री पास. तो ये क्या बोल रहे हैं कि एनास्टेसिया सोअर, आप ये देखो ना कि ये इस पोजीशन पे जो ये बिलियनर्स हैं यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते अगर उनमें ये ग्रैटिट्यूड नहीं होता. जितना है उसमें ग्रैटिट्यूड करेंगे जब हम लोग, उसके लिए शुक्रगुजार जब हम लोग होंगे, तब वी विल हैव प्लेंटी टू बी थैंकफुल फॉर. जितना है उसमें हम लोग अगर करें तो. सो इन्होंने क्या बोला, वही जो हम लोग काउंट माई ब्लेसिंग्स रोज करते हैं, वही तो उन्होंने बोला है कि वेक इन द मॉर्निंग एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट यू आर हेल्दी, यू कैन वॉक, यू कैन सी, यू कैन ब्रीथ, एवरीथिंग. आप सोचो कितना ज्यादा हम लोग वेकअप होके हम लोग जब ये सोचेंगे ना, तो हमारा दिन की शुरुआत ही हमने इतने अच्छे से करी है, और हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है. हम लोग इस प्रैक्टिस में ये सभी तो सीख रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं क्लासेस में या सेशंस में, हम लोग समझ रहे हैं. उसके बाद हम लोग जाके अपने घरों में, अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ हद तक हम लोग करते हैं, लेकिन जब वो आंधी आती है ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी की आंधी आती है, कई बार वी गेट ब्लो ऑफ ना, तो हम लोगों को ना वो वहां पर हम लोग वी डो नॉट हैव टू गो दैट वे. उस वक्त आंखें बंद करके ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं हम लोग अपने रैंडम चीजों को थैंक यू बोल सकते हैं, so that we come, like we pull ourselves back into that position, into that feeling of gratitude. So वही बोल रहे हैं कि लाइफ के कोई भी चैलेंज हो, कोई भी ऑब्स्टिकल आए आपके सामने, सभी के सभी को हम लोग डीप ग्रैटिट्यूड फील करके हम लोग पास कर सकते हैं. तो आपके करियर में भी अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक आती है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर बुक इज फोकस्ड ऑन योर करियर ना, तो करियर में अगर आप फोकस करके आपको कोई भी दिक्कत आ रही, किसी भी चैलेंज की, मान लीजिए इन्वेंट्री, आप बिजनेस में हो और आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, तो व्हाट यू विल डू अगेन, यू विल टेक द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड ना. उस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए भी हम लोग ग्रैटिट्यूड ही करेंगे. तो
हम लोग इन दोनों बुक को कंबाइन करके यूज करते हैं ना, दोनों बुक्स, इसीलिए मैम हमेशा ऐसे बुक चूज करती हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व को चेंज करते जाएं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को चेंज करते जाएं। शुड ऑलवेज दिस प्रैक्टिस शुड क्लिक। कल मैम ने जब बोला था ना कि ये प्रैक्टिस है, तो मैंने फटाफट करके ना सारी डे 1 से लेकर डे 28 तक की प्रैक्टिसेस लिखी, वो चैप्टर्स याद करके लिखे फटाफट फटाफट, एंड आई कुड डू दैट। तो व्हेन यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट, अगर आपको करियर में चैलेंज आ रहा है, आपको पता है कि मैंने कौन सा वाला करना है प्रैक्टिस, फिर आप उसको करो। किस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, आप उसको करोगे। आपके हेल्थ में कोई चैलेंज आ रहा है, आंख में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको पता है कि मुझे कौन सा वाला प्रैक्टिस करना है। तो दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग द ग्रेटिट्यूड इनटू योर प्रैक्टिस, इनटू योर डेली प्रैक्टिस. So we have to make each and every practice our daily practice by practicing gratitude. It's very simple. कल जब मैम ने कहा ना कि 9 प्रैक्टिसेस करनी है, 9 वाले हम लोग कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग तो वैसे ही कर लेते हैं ना, कि दिन की शुरुआत में हमारी वो प्रैक्टिस हो गई, रात को हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस हो गई, फिर हम लोग मैं अपने रिलेशनशिप के लिए लिखती हूँ, वो वाली प्रैक्टिस हो गई। जरूर से मैं रोज अपना हैव अ मैजिकल डे करती हूँ। आप लोग भी ये कर सकते हो। कैसे ना, मैंने नया तरीका शुरू किया इसको करने का। तो जब मेडिटेट करते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम में क्या करती हूँ ना, बैठ कर हैव अ मैजिकल डे, मतलब अपना पूरा का पूरा डे प्लान कर लेती हूँ। पहले आई यूज टू राइट, मुझे लिखना अच्छा लगता था, बहुत लिखना अच्छा लगता है मुझे, तो पहले आई यूज टू राइट हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस, जिसमें यू डिजाइन योर डे फॉरवर्ड। आप पहले एडवांस में अपना डे डिजाइन कर लेती हूँ थैंक यू बोल के। तो अब मैंने अब व्हाट आई डू इज, मैं मेडिटेटिंग पोजीशन में बैठती हूँ, और उसमें बैठकर मैं अपना डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्रिलियंट मॉर्निंग सेशन टुडे, thank you universe for the super tasty lunch that Kusum cooked, and thank you universe for my excellent day in trading. इस तरह से मैं हर एक अपना दिन को ना डिजाइन कर लेती हूँ उस तरह से, हैव अ मैजिकल डे को, तो वो भी हो गया हमारा। तो इस तरह से खाना खाते हैं जब हम लोग, तब हम शुक्राना करके खाते ही हैं। तो these practices are like getting so much imbibed and incorporated into our daily life ना, कि हम लोगों को we don't have to sweat out कि क्या करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे हम लोगों ने कौन सा प्रैक्टिस करना है उसके लिए we have to listen to the sessions and we have to read the books very diligently, because gratitude is the free pass that universe has given to us to overcome any obstacle that you are facing, that any challenge or obstacle that you face. तो that problem diminishes, actually वो disappear हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे ना, हम लोग तो फोकस अच्छा ही पे करेंगे। So because of that, yes ma'am, Peter for you. Please unmute yourself, ma'am. You have not. Sorry about it. Gratitude has to be on the forefront of everything you do. You have to be very grateful, number one, for being here. If you have any positive things in your life, be grateful for them and they multiply. The more grateful you are, the more things multiply. And the more people, events, and situations that are not that wonderful for you dissipate, disappear, or vanish. It's amazing how much more quickly things that are not to your favor vaporize the more grateful you are. I am a witness to this countless times on all levels. If you instill yourself with a grateful heart from the beginning of your journey and you maintain your gratitude along the way, you will make your journey that much easier and any difficulties will be reduced dramatically. Without gratitude, you pass up the opportunity to have the universe plot and plan and provide the right people and the exact circumstances you need to help make your dream come true in the most magical way. Instead, you're going to have a heck of a rocky ride. And in addition, you miss out on the blissful feeling that comes with a grateful heart. Yes. So we all know that grateful heart is a bliss. हम लोगों को अपने लाइफ में blissfulness चाहिए. We want to get that blissfulness, that contentment in life. So what we have to do? Contentment के लिए we have to do these magical practices. So these magical practices are not something like वो gratitude की practice है कि हम लोगों ने शुक्राना, gratitude
थैंक यू ढूंढना है हर एक चीज में, हर एक कण कण में। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि भगवान कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो कण कण में है। तो हम लोगों को उसी तरह से शुक्राने को कण कण में ढूंढना है। इफ आई हैव गॉट दिस टेबल, इफ आई हैव गॉट दिस प्लेस टू सिट एंड टेक द सेशंस or read the book, so I will be thankful for this particular situation. पापा जी मेरे सामने आए तो उनके लिए I have to be so much thankful to have his blessing on my head, है ना। दोनों पेरेंट्स, अभी पापा जी इज ओनली द लिविंग पेरेंट इन माई लाइफ, तो आई हैव लाइक आई लव हिम सो मच। उनका इतना ज्यादा, हम उनको देखते ही हम लोगों को यूं लगता है कि हाँ भाई वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर वो लोगों ने उन्होंने टोक भी दिया ना कि ये नहीं है वो नहीं है, तो भी मैंने अपना फोकस कहाँ रखना है, अच्छाई पे फोकस रखना है। सो इसी तरह से ये भी यही बोल रहे हैं कि मतलब वट एवर यू डू नॉट वॉन्ट ना, दैट थिंग डिसअपियर। आई लाइक इफ आई टेल यू माई स्टोरी, आई वॉज वेरी लाइक मैं थोड़ा सा वैसी थी कि वेरी ब्रॉड माइंडेड सॉर्ट और इस तरह का, लेकिन मैं यहाँ पर जब आई तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही एक ऑपोजिट कल्चर में आई थी। आप सोच सकते हो कि कैलकाटा एंड हरियाणा, so it's totally different, an opposite culture. लेकिन why I could survive here just because I concentrated on the positives of this society as well. हर एक सोसाइटी में आप अगर किसी को अगला हम लोग बोलें कि हरियाणा के बारे में अगर बोलें कि यहाँ पर ये होता है, रूडनेस होती है, ये होती है, वो होती है, यहाँ के लोग बहुत रफ बोलते हैं, ये बोलते हैं, सोचते हैं पीपल। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट व्हेन आई केम इन हियर एंड व्हेन आई हैड अ टॉक विद माय हस्बैंड, उनके बाद मैंने यहाँ पर आके सब चीजों को देखा, तो मैंने ये रियलाइज करा कि द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस दैट यू लिव इन ना, दैट गिव्स सो मच इम्पैक्ट इनटू योर लाइफ, यू नो। सो दीज पीपल, वो हमेशा ये नॉर्दर्न इंडिया, मतलब आपको पता है यहाँ पर काफी हार्श एनवायरनमेंट रहता है कई बार ना, कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड। तो इस पर्टिकुलर क्लाइमेट के कारण वहां यहाँ के लोगों को अपना व्यवहार वैसा करना पड़ता है, नेचर उनको ऐसे बना देती है टू मेक देम सर्वाइव द थिंग, है ना। उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्लेमेटाइज करने के लिए दे हैव टू बिकम दैट, दे हैव टू बिकम दैट टफ, so that toughness comes into their mouth also. तो इस तरह से हम लोग, मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया थिंग्स को। अगर यहाँ पर ये चीजें हैं, अब जैसे मान ली इन्वेजन्स, आप अगर इन्वेजन्स देखोगे ना हिस्ट्री में निकाल के, जो भी इन्वेजन्स हुए हैं, ज्यादातर इन्वेजन्स में ना वो नॉर्थ से ही आए थे यहाँ पर। तो इन लोगों के घर, इनका कल्चर बना उजड़ा ऐसा रहा ना, तो दैट सिचुएशन हैज मेड देम दैट टफ। तो what we have to think is we have to look at the fact कि क्या चीजें हुई होंगी जिसके कारण उनका बिहेवियर आज ऐसा है। तो द सेम वे हम लोगों का फोकस कहाँ पर है। अब ऐसा कर करके हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया कि अब दिस सोसाइटी इज सो मच लिबरेटिंग काइंड ना, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर गर्ल्स को कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस है। जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वो कल का था, लेकिन आज का हरियाणा इज टोटली डिफरेंट। यहाँ के लोग अभी बहुत ज्यादा लिबरेटिंग है, दे लव देयर डॉटर्स मोर देन देयर सन्स। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा इवन जो हमारे जो सोसाइटी से हम लोगों कहाँ से हम लोग पता करते हैं कि कैसे लोग होंगे वहां का, आप किसी भी सोसाइटी के ना बिल्कुल नीचे के तबके के लोगों को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर ये प्रैक्टिसेस होती है कि दे ऑलवेज हैव दिस गुड फीलिंग फॉर देयर डॉटर्स, दे आर नॉट वरीड एनी मोर टू गिव बर्थ टू अ डॉटर। वो अपने डॉटर्स को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हैं अभी। वो हम लोगों ने जब इस चीज पे फोकस किया ना, उनकी अच्छाइयों पे फोकस किया, तब आपको वहां पर रहने की क्षमता आ जाती है। यू गेट दैट स्पिरिट टू फाइट। सब कुछ आपको मिलता है जब यू फोकस ऑन द गुड्स, एंड द बैड्स और द नॉट सो गुड थिंग्स विल डिसअपियर। बिल्कुल हो जाता है इसी तरह से, क्योंकि आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया ना, तो आपके साथ अपना फोकस आपने शिफ्ट कर दिया, तो सारी अच्छी अच्छी चीजें ही आपके साथ होंगी, वहां की सारी खूबियां ही आपको मिलेंगी। वरना एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने से आपको बिल्कुल डिफरेंस नजर आएंगे, लेकिन आप वहां पर जाके वहां की अच्छाइयों को देखें, तो आपके पास जो कि नहीं बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। तो यही यहाँ पर वो बोल रहे हैं पीटर फॉयो कि आपके सिचुएशंस, आपके इवेंट्स जो है पॉजिटिव्स तभी होंगे व्हेन यू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, एंड द थिंग्स दैट आर नॉट सो पॉजिटिव दे विल वेपराइज, वेपर बन जाएंगे वो, बिकॉज आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है ना। अब इवेपोरेशन का प्रोसेस तो चलता रहता है। हमारे जितने भी प्लांट्स है, उन प्लांट्स में से, ट्रीज में से हम लोगों को पानी उड़ता हुआ नजर नहीं आता है। आप कोई सामान रख दो, उसमें से पानी, उसमें से कोई भी वाटर कंटेंट है ना,
वो इवेपोरेट होता रहता, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो द सेम वे, इफ बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग देयर, अगर आप देखोगे ना, तब आप फोकस करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, कि इतना पानी कम हो गया, इतना पानी कम हो गया. वो कम क्यों हुआ? इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण कम हुआ ना. सो एक्चुअली सब कुछ ही इस तरह से काम करता है कि आपने अपना फोकस कहाँ पर रखा. आपको किसी ने चाय दिया, आपको ग्लास में चाय दिया, पानी दिया, कुछ दिया, तो आप कितना देखोगे? वो ग्लास आधा भरा हुआ जो है ना, वो देखो, या खाली जो देखोगे वो देखोगे. So it is totally about your perspective, how you see and visualize the thing according to your observation. It makes a difference. कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी चीज हो, आप ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने लाइफ में पॉजिटिविटीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, और उनको आप अपोज भी, आप उसको डिट्रैक्ट भी कर सकते हो इफ यू लुक इनटू द नेगेटिव्स. So attraction and detraction occurs side by side, है ना. It's up to you what you want to do. You want to attract the love or you want to detract it. डिट्रैक्ट करना, आपने उसको अपने लाइफ से खोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, आप सोचते रहो, भाई वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो उसमें इतनी गलतियां क्यों हैं. आप उसमें से गलतियां ढूंढना बंद कर दो, अच्छाइयां ढूंढना शुरू करो. आपको उसमें अच्छाइयां ही नजर आएंगी, उसकी गलतियां तो डिमिनिश हो ही जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से डिमिनिश हो जाएंगी. Because you are not giving that lack feeling. Those who want that, मतलब हमारे जो वॉन्टनेस, हम वॉन्ट कब करते हैं, हम चाहते कब हैं कुछ किसी चीज को. अब मेरे को कॉफी चाहिए, बट मैं कॉफी के बारे में सोचती रहूंगी तो नहीं आएगा मेरे पास कॉफी. मैं क्या करूंगी ना, मैं ये सोचूंगी कि मैं वो कॉफी पी रही हूँ, और मैं उस आनंद को लूंगी कि वाह मैं कॉफी पी रही हूँ. सो आपको क्या करना है, जो भी चाहते हो, यू हैव टू रिफ्लेक्ट abundance into the universe. You have to reflect the universe that I have this thing. If you want a car, suppose, you want to think, you have to think that you are driving that car. If you want to live in a big beautiful house, you have to think that you are living in that house right now. Then only you will be attracting that. But if you want that, you give that want wala feeling into the universe. When you want that, आप चाहते कब हो, आपको वो चीज चाहिए कब, जब आपके पास वो चीज नहीं होती, तभी चाहिए होती है ना. तो आप नहीं को ही तो अट्रैक्ट करोगे ना. फिर वो वांट वाला, वो लैक वाला फीलिंग जब होगा, तो आप उसी चीज को, लैक को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. सो व्हाट वी हैव टू ड्रिफ्ट इज, we have to we have to reflect the abundance of having that thing into my life. मैं चाहती हूँ मेरे पास बड़ा अच्छा घर हो, तो मुझे ये फीलिंग देनी पड़ेगी यूनिवर्स को. यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. यू हैव टू रीच देयर नाउ इन ऑर्डर टू गेट दैट इनटू योर लाइफ अभी. So we have to be very vigilant, and we have to keep our focus on the now, and we have to be thankful for the things that we already have in our life. बहुत कुछ, सब कुछ है हमारे पास. जो इस फीलिंग में रहेगा उसको बाकी सब कुछ भी मिलेगा जो कि वो डिजायर करता है, लेकिन वांट वाला फीलिंग से नहीं होगा. अगर आप वांट वाला फीलिंग आप दे रहे हो, यानी कि यू डू नॉट हैव दैट इन अबंडेंस. So what we want to attract? We want to attract abundance, right? We want to flourish in our relationship, in our money factor, in our health, in each and every realm of our life, in each and every aspect of our life. We want to thrive and flourish. So uske liye what we have to do is we have to practice that. We have to practice being in love always, being thriving in that particular job wherever you are right now. We have to think that मैं कितने अच्छे से, मुझे वो जॉब मिल चुकी है और मैं उसको कर रही हूँ. पावर बुक में रोंडा बर्न ने ना प्रॉप्स दे रखे थे कि अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए ना, तो आप ये फील करो कि यू ऑलरेडी हैव दैट लाइफ पार्टनर. बिल्कुल आपकी चाहत का, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है. आपके अलमारी में एक जगह फिक्स है कि जहां पर आप अपने कपड़े रख रहे हो. अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपके कपड़े एक साइड है, एंड एक साइड आपका हस्बैंड, आपने या फिर आपका लाइफ पार्टनर आपके उसके कपड़े टांग रहा है. तो यू लिव दैट सिचुएशन. अगर आप उस सिचुएशन को जियोगे तो वो आपके पास वो सिचुएशन आएगी, और जो आप नहीं चाहते हो वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ से डिसअपियर हो जाएगा. सो या वी ओवरशॉट दिस. थैंक यू सो मच रितु मैम फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बर्थडे भी है. You, I थैंक यू love सो it. मच, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी Thank बर्थडे टुडे.
and always Today's may you chapter. always be surrounded with love, joy, and abundance in each and every realm of your life. जो भी आप चाहो, जितने भी आपके ड्रीम लिस्ट है ना, फटाफट से पूरी हो जाए वो. Thank आपको you so much. कंटेंटमेंट और वो ब्लिसफुलनेस और वो वाला जोन में आप हमेशा रहो, so that you always attract that. Thank you so much. And yeah, Bharti, your hand is raised. I want to say something. Can Yes, I? please, ma'am. Today's Yes, blessing please. is to. Am I audible? Yes, you are. Okay. Today's birthday wish I got from Rhonda Byrne through Anastasia Sour's paragraph. Everything was meant for me. Thank you so much. And thank you all for your And you warm. chose this particular day. इतना पहले ही आपने choose किया था ना? You didn't know that time that you'll be reading this paragraph. So whatever happens in our life, na, it doesn't happen by chance. It happens because it had to happen, because you attracted this. That is why this thing is there and for you today. Otherwise, people generally birthday में ना, they choose to read the magic book पहले ना. But you chose this deliberately. You chose this hero book. You selected that slot for you. So आपके लाइफ में ये चीजें बिल्कुल आनी ही थी जो आपने ये पढ़ा, और वो है आपके लाइफ में. सो ग्रेट. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे. यस, वी हैव अनूप जी. या अनूप जी बोलिए. Yeah. Hello, everyone. Hello, ma'am. हाय. Yeah. We have Some been days waiting ago, for you actually. We have. some days ago, I just requested my sister Manisha ji to make me join this group. And then I put my problem because I have shifted here and moved to Canada, leaving all, and I was really in a bad mood because there was no work. Uh, I followed whatever Deepti ma'am told me, and I followed all this process. And I was wondered, like within 10 days, I got again job here, and it was a government job there. Just it was really a miracle, and I want to thank all of you, and I want to thank uh, Priya ma'am and Deepti ma'am, Manisha Didi, everyone. Just I am feeling blissful now. Really, it was just a magic. How it happened, I don't know. I don't know the magic of these words. I don't know. It can happen. It was just, I think so. Before that, I think so. It's a mere wastage, but no, it's not a wastage. Whatever you think, you become. And if you are positive, if you think about the positive matters, naturally the positiveness will come to your life. And really, and I listened to you today also, and you were talking about the situations like in Haryana, and so even in my school where I have been shifted, it's the situation is similar like that. It's a tense situation, but I think so it will be better now because your speech, your way is totally based on that matter which was in my mind, and I'm really thankful to you, to all people here. Thank you Thank you very so much. much, Anup ji. And whatever happened to you ना, जो आपके साथ हुआ है ना, that is not a magic, that's a miracle actually. And Yeah, ऐसा it's ही a होता है, these yeah, practices and all. yeah, या दीज आर, मतलब ये हमारे लाइफ में ये जो मैजिक का मतलब, ये हम लोग ना सोचें कि ये मैजिक का मतलब कुछ इस तरह का है कि वो कुछ जो हम लोग जैसे पीसी सरकार का मैजिक देखने जाते हैं, ये वो नहीं है. ये मैजिक का मतलब ये ही है कि यू रीच दैट ब्लिसफुलनेस, दैट द वे द रितु मैम ने बोला ना कि ब्लिसफुलनेस वाली फीलिंग आ रही है. आप mm, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ बिकॉज यू हैव दैट फीलिंग of blissfulness when you do not yeah, have your expressions, your persona say it all. You do not have to say anything. आप वैसे वाले सिचुएशन पहुंच जाते हो कि जो आपके साथ हुआ है वो मिरेकल है. और वो yeah, एक्चुअली वो इस तरह से होता ही है जब हम इस बुक की सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और पॉजिटिविटी में रहते हैं. बिकॉज वी अट्रैक्ट दैट ओनली ना. हम जो करेंगे, हमारी जो मानसिकता होगी, हम उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे. आप नेगेटिव थे, आप परेशान हो रहे थे, तो आपके पास वो चीजें नहीं आ रही थी. लेकिन जब आपने अपने चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया, आपने पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करके आपने उस चीज के लिए काम भी किया. देखिए, पॉजिटिव हम लोग सभी होते हैं,
The difference lies in the practices actually. Finding gratitude in each and everything. वो ना कण कण में gratitude ढूंढना, वो करेंगे ना बिल्कुल तब हम लोगों को लगेगा कि we are already in abundance. When you count your blessings ना, when you count the things around you, the positivities in your life, then you reflect this feeling in the universe that I am in abundance. I am या already in abundance. जब मैं abundance में हूँ तो abundance ही आएगी ना मेरे पास. बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन यू वाइन ऑन द थिंग्स कि नहीं है मेरे पास, या परेशान होते हैं या रोते हैं, तो फिर यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट नेगेटिव फीलिंग इनटू द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स को तो कुछ नहीं पता ना इस बारे में कि आप जो रिफ्लेक्ट कर बिल्कुल रहे हो आपको वही मिलेगा. बिकॉज ऑफ दैट यू डिडंट गेट जॉब पहले, बट it happened in your life in order to make this change in your life, so that you keep practicing and keep following the thing. So श्योर congratulations to you. It's actually थैंक like यू not short of a miracle. It's a miracle actually. Thank you so या much, Anujji. थैंक यू Yes, Bharti, थैंक you यू want to say something? Yeah, I just wanted to say thanks a lot to you. Just like every day when Deepti ma'am takes session, it's always like I feel okay, these sessions are meant only for me. The all 108, 110 people are here just for me. The way she speaks, it's like every line she's saying for me. And today you did also the same. Like even I got the message, ma'am, same is for Rudraksh. Rudraksh bhi is the best. Thank you, Rudraksh. लिखना है आपको रोज यही लिखना है और कुछ नहीं सोचना है. So thanks to you, the examples you took, as it was like the way you talk to me personally, as it was like, okay, again, you're just talking to me only. Everything, every single example, it was like, okay, it is only for me. So thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, Bharti. Actually, this is the essence of these sessions ना, कि जो भी मतलब मैम, अगर मैम इस तरह बैठती हैं तो हमेशा मैं मैम को यही लिखती हूँ कि मैम मतलब आई डो नॉट नो हाउ यू कम टू नो अबाउट द थिंग. सो जैसे कि मैम ने बोला था मेडिटेट करने के लिए, आई ऑल्सो डू दैट कि मेडिटेट करके कि I requested universe to make me speak those words that the people want to listen, right? तो इसी चीज के लिए तो it's not me actually. Whatever you listened na Bharti, that is in your mind only. You only got voice to those words, you know, that is there in your mind. It was there somewhere hidden in your mind, but today you got a voice to voice out. You got to listen those words. Like हम लोग जब out loud बोलते हैं ना, मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ. So it goes like that. Thank you so ये much for बहुत अच्छा है, मैं understanding ही the तुम thing. हो तुम ही मैं हूँ. या ऐसा ये ही है, एकदम बहुत एक्चुअली ऐसा ही है. ग्रेट. जो बेंटिनो मसारो की बुक है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है इसी बात को लेकर कि वननेस पे, वन कॉन्शियसनेस पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं बेंटिनो मसारो. तो वही चीज है. तो ये जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको फॉलो जो हम लोग कर रहे हैं, फॉलो ये तभी होगा जब व्हेन वी गो डाइव डीप इनटू दीज थिंग्स, राइट? तो इसी तरह से थैंक यू सो एक मच. आई डाउट कुड था. लाइक आई थिंक प्रैक्टिस करनी है. I दैट्स द क्रक्स. हर I किसी just चीज had का a वो है doubt. कि वी डू नॉट. I या just have a 7:30 के question. बाद से वी आर इनटू आवर कॉन्शियसनेस अगेन. अभी तो हम लोग सारे के सारे यूफोरिया में रहते हैं कि हाँ मैम, दीप्ति मैम ये बोल रही, नहीं तो यूफोरिक होता है ना कि ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे. रियल लाइफ तो तब हमारी स्टार्ट होगी ना 7:30 के बाद से. देन हाउ आई एक्ट. मैंने अर्चित के लिए इतना इतना अच्छा अच्छा बोल दिया. अब मैं 7:30 के बाद जाकर जब वो देखूंगी वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, तब जैसे एक्ट करूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि तब मेरा ग्रेटिट्यूड वहां अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही. दैट वी हैव टू डू. Yeah. सो So या, I just have a थैंक यू सो question. So मच. do we have to meditate also for the same, or we just need to write? रिलेशनशिप के लिए हाँ, यू Yes. हैव टू थिंक ना, यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड थिंक दैट व्हाट ही डज फॉर यू. जैसे वो तुम्हारी रुद्राक्ष तुम्हारी उसमें हेल्प कर, अगर मान लो तुम रुद्राक्ष के लिए कर रही हो, जैसे वो तुम्हारे कंप्यूटर में हेल्प करता है, तुम्हारे किसी प्रेजेंटेशन में मान लो कोई हेल्प करी उसने, या फिर मान लो कभी उसने तुम्हारे लिए चाय बना कर दी, कभी कुछ इस तरह से हेल्प किया कि मम्मा आप वहां जा रहे हो, कुछ अप्रिशिएट किया, साथ में गया, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा भारती, कुछ ना कुछ पक्का होगा. और आपको वही लिखना है, वही पे कॉन्सेंट्रेट करना है. जो लैकिंग है ना उस पे नहीं करना कि इफ यू थिंक अबाउट द लैक ही विल डू दैट ओनली, ही विल रिफ्लेक्ट दैट, बिकॉज दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड टू द यूनिवर्स ना, तो दैट विल बाउंस बैक टू यू, राइट? इट गोज लाइक दिस ओनली. सो One जो more तुम question. चाहती हो वो तुम्हारे साथ तभी होगा जब अच्छाइयों पे, गुडनेस पे फोकस करोगी. या Yeah. So सो one more थैंक यू सो question मच I have. एवरीवन. आई होप आई वाज. Priya, I have one more या, question. हाँ Yeah. बोलो. So I am reading a book, and I guess I shared with you as well. So it's about divorceless relationship with your own self. Like someone told me a few days ago in a session that you need to maintain a relationship with your own self first.
where you are lacking. You Mm. just have a relationship with everyone in the world, not with you, not with your soul. So when we do these practices, so can we do it for ourselves only, or magic mirror is only meant for ourselves? Just a No, thought came magic in mirror my is meant mind. for When, us. Magic mirror is meant for and us. what But about these this? all Like, practice, na. can I Hmm. do this, that magical relationship for my own soul? Just a thought came See, in mind for while that doing. we have that magic mirror practice, है ना Yeah, भारती? only उसके that. लिए Yeah. we have magic mirror practice. Because आप रुद्राक्ष के लिए भी या फिर मान लो किसी के लिए भी मॉम के लिए, डैड के लिए, किसी के लिए भी करोगे ना, वो आप एक्चुअली अपने साथ जब तक आपका रिश्ता सुलझा हुआ नहीं होगा ना, तब आप नहीं कर सकते वो। पहले आपने क्या करना है ना, उसके साथ जब आप चीजों को उनको थैंक यू बोल दोगे, क्योंकि हमारे में तो फिर वो वाली थिंकिंग आ जाती है ना कि हम लोग वे सेल्फ बोस्टिंग हो जाते हैं कि हमें नहीं करना, नहीं करना। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। सो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन, यू नो। हम लोगों को यही चीज सीखनी है कि हम लोग औरों को अप्रिशिएट जब करेंगे तभी कर सकेंगे वो, जब हम लोगों के अंदर से, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी पोजेस इन अदर्स ना। तो वी हैव टू लुक इन टू दैट। हम लोग खुद को भी इनडायरेक्टली अपने को ही चेंज कर रहे हैं, अपने को ही थैंक यू बोल रहे हैं जब हम औरों को चेंज कर रहे हैं। वही वननेस वाली बात आ गई ना, कि Yeah. आप उनके अंदर भी वही चीज कर रहे हो, वही चीज सोच रहे हो जो आपके अंदर ऑलरेडी हो रही है। उसके अपने व्यक्तित्व को चेंज कर रहे हो आप, तभी उसकी खूबियों को देख पा रहे हो ना। सो दैट वे ऑल्सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योरसेल्फ हो ना, यू आर थैंकिंग योरसेल्फ फॉर दैट ना। सो दैट कम्स इन डायरेक्टली टू यू। Each and every thing, you know, each and every practice is meant for yourself only. By doing for others, you are doing it for yourself also. So लास्ट में मैजिक मिरर प्रैक्टिस है ना, जब आप दिल खोल के अपनी तारीफें करोगे, लेकिन उससे पहले आपने औरों के लिए करना है, जो कि इनडायरेक्टली आप अपने लिए ही कर रहे हो। गॉट इट? Okay. I'm sorry again. One more thing. Like आज मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को, टाइम है. हाँ, बोलो बोलो बोलो। Yes, I just wanted to say thanks again to all of you, to Sunaina ji particularly, and to the Dipti ma'am and to entire group, because I found her because of you all guys. मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, सबको पता है. गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारे पास बच्चे होते हैं, वो लाइक वो बच्चे जो सड़क पे रह रहे हैं, लिटरली उनके पास घर भी नहीं होता, बस गवर्नमेंट को प्रोवाइड. 90% बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं. तो यूनिफॉर्म तो गवर्नमेंट दे देती है, वो भी हर साल नहीं देती है, 2 साल से उनको वो भी नहीं मिली. बट वो ठंड बहुत है इस बार, एंड आई वाज लाइक कैसे इनके लिए स्वेटर्स अरेंज हो पाए, और इतनी सुबह ठंड में 7 बजे हम स्कूल पहुंच जाते हैं, तो ये कैसे हो पाए कि उनको कुछ हो पाए, और वो अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. सो वंस आई जस्ट पोस्टेड इट कि लुकिंग फॉर द हेल्प फॉर द किड्स दोज हु कैन अरेंज स्वेटर्स, एंड आई लिटरली, मैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स. लाइक सुनैना जी अरेंज स्वेटर्स फॉर द एंटायर 6 to 8, लाइक ऑलमोस्ट उन्होंने 450 बच्चे हैं हमारे पास ओनली 6 to 8 में. तो उनके लिए उन्होंने शी सेंट मी अमाउंट, और वो भी वो मतलब बहुत उसके साथ कि ये सॉरी आई एम ट्रबलिंग यू, आप ला पाओगे क्या, आप कर पाओगे क्या. सो आई जस्ट वेंट देयर, आई सर्च होलसेलर टू गेट इट इन बल्क, एंड लाइक मतलब इतना आसान नहीं होता किसी और के लिए आप इतने लाखों रुपए खर्च कर दो, और वो भी सेल्फलेसली. सो शी डिड इट फॉर, मैं तो कहूँगी बच्चों के लिए नहीं, मेरे लिए ही किया, क्योंकि मुझे बहुत वो लगता था कि मैंने एक को दिला दिया, दो को दिला दिया, सबके लिए मैं नहीं कर पा रही थी, चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी. तो एंड आई फाउंड हर बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ओनली. सो और जो इनकलकेट करती हैं दीप्ति मैम सब में, शायद वो सुनैना जी में भी उन्होंने ही किया है ऑफ कोर्स. तो उसके कारण वो हेल्प मिल पाई बच्चों को. वो लाइक शी विल बी कमिंग टू इंदौर आई गेस, और भी अमाउंट वो अरेंज करके, और वो सबके लिए कर रही हैं, वो हेल्प की सभी के लिए कर रही हैं. और इन दैट कॉज ऑफ दैट ओनली आई गॉट अदर्स पीपल ऑल्सो नाउ कमिंग इन फ्रेंड की अच्छा ड्रेस नहीं है, ओके टी शर्ट्स मेरी तरफ से करवा दो. तो ऐसी वाली चीज़ें हो रही हैं. अभी पिछले कुछ दिनों से मैं रोज मार्केट जा रही हूँ बच्चों के लिए शॉपिंग करने. तो बहुत 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 सारा थैंक यू सबको, दिल से बहुत सारा थैंक यू कि आई आई लिटरली गॉट दैट हेल्प जो मैं अकेले नहीं कर पाती उनके लिए. और मतलब बस थैंक यू. थैंक यू भारती, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम जो ये अरेंज कर रही हो, तुमने ये फ्लोट, ये जो डिजायर है ना, तुमने वो भी तो फ्लोट किया ना. दैट्स व्हाई शी बैग, आज उन्होंने बोला. एंड सुनैना तो एक्चुअली इज वेरी जेनरस.
बहुत ज्यादा जनरस, बहुत ही बड़ा दिल है उनका जो इस तरह से कर रही हैं वो। हम लोगों को हर किसी को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए हमेशा करते रहना ही चाहिए, सो दैट हम लोग अपने लिए तो कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी जब करेंगे ना तभी हम लोगों को उसका कई गुना होकर मिलेगा। सो दैट इज द रीजन। और हम लोगों को हमेशा ये सोच कर नहीं करना कि हमें मिलेगा। सो सेल्फलेसनेस की जो भावना होती है ना, वही यही होती है कि व्हेन यू डू, कहते हैं ना कि आप एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उससे कुछ छूटा है, उससे कुछ गया है। सो वी हैव टू हैव दैट सेल्फलेस। ये वाला भारती, तुमने बोला यू वर वोकल अबाउट दिस, बट यस वो ऐसी ही है। एंड इन अ सेंस वी आर ऑल्सो गिविंग टू द सोसाइटी, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से तुम कर रही हो, ईच एंड एवरी पर्सन ब्रिंगिंग लाइक पीपल इन टू दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पूरी की पूरी चिराग दिखा देने का है ना, चिराग हाथ में दे देने का, जो तुम कर रही हो, जो बाकी सभी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एंड कुडोज टू यू भारती, यू आर एक्चुअली ब्रिलियंट। Like, आपने ये डिजायर फ्लोट किया था, तभी तो यूनिवर्स ने आपको इस तरह से आंसर किया ना, एंड नाउ यू आर गेटिंग सो मेनी पीपल, एंड दोज किड्स आर आल्सो गेटिंग सो मेनी पीपल। सो या, और हम लोग सभी, उनके जो एक्चुअली खुशी हम लोग होती है ना सभी इस उनके चीज फेस पे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। वी आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन ह्यूज अमाउंट्स। सो वो टैक्सेस इसीलिए यूज होना चाहिए कि भाई इन सब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सब्सिडी मिलती है, या बाकी और जगहों में जो सब्सिडाइज चीजें मिलती है ना, दैट इज बिकॉज वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द टैक्सेस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक तरफ से टैक्स चोरी करें और दूसरी तरफ से हम लोग ये करें, वो भी चीज नहीं है। हम लोगों को अपनी ड्यूटीज को नेशन के प्रति, लोगों के प्रति, हर कोई ड्यूटी को जब हम निभाएंगे ना, तो वो हम लोगों को एक बहुत अच्छा सिटीजन और एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू आवर ड्यूटीज प्रॉपरली। एंड भारती, यू आर ऑलवेज दैट जनरस, एंड सुनैना तो है ही, थैंक यू सो मच। और ये जो Thanks. चीज है ना, मतलब हम सभी को करना चाहिए, वी शुड ऑल डू इट ऑफन। मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप एक टॉफी भी दे दो तो उनके लिए बहुत बड़ी बिग डील होती है। और जब आप उस सराउंडिंग में जाते हो तो वहाँ जितना करो कम है। तो लाइक दे डोंट हैव कॉपीज, दे डोंट हैव एनी। कुछ दिन पहले भी एक लड़की नंगे पाँव आई थी, इतनी हम लोगों ने भारती, अब only यही देखना है कि बस। उनके पास क्या है, उनके पास भारती है, उनके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं, उनको जाने के लिए एक स्कूल मिला हुआ है जहां पर बहुत सारे, आप सोमालिया में जाओगे ना, वहां पर लोगों के पास रहने को कुछ नहीं है, तो वो पढ़ने क्या जाएंगे, खाएंगे क्या, है ना। हमारे कंट्री कम से कम ऐसे सब्सिडाइज स्कूल्स हैं, ऐसे ब्रिलियंट टीचर्स को आप ये देखोगे ना, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी टीचर्स होते हैं मोस्टली, वो बहुत ही ज्यादा compete करके वहां पर आते हैं, है ना, compete करके आते हैं। एग्जैक्टली। उनको इतने ब्रिलियंट माइंड्स मिल रहे पढ़ाने के लिए। हमारे टाइम पे तो मैं केवी से पढ़ी हुई हूँ सारी लाइफ में अपनी। तो हमारे टाइम में तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना एक बहुत ही वो बात होती थी। इवन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है, आप डीयू से आप कोर्स लो और आप और जगह से कोर्स लो, वी हैव टू, अगेन हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हम लोग उन बच्चों को क्या मिल रहा है उस पे फोकस रखें, है ना भारती। हमें ये नहीं देखना कि उनको क्या नहीं मिल रहा है। सो दे आर गोइंग टू द स्कूल, दे हैव गॉट द प्रीमाइसेस फॉर देमसेल्फ ना, वहां पर जाके बैठ रहे हैं। स्कूल में जाने से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, खाली हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, वो सब हो रहा है उनके साथ। तो और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम वोकेशनल कोर्सेज वगैरह लेके आती हैं, तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। हम लोग उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही दोस किड्स विल गेट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज लाइक जेनरस ऑफ अस, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए। So again, what we'll do is we'll focus towards what those kids have in them. That's what I They have already, got I Bharti really ma'am say as a thank you Chirag for the Kajin. building, for the Yes. building they have to sit to and learn. Yeah, Yeah, thank Bharti. you. So Thanks. that is the thing. Now we have to, mold our vocabulary also. We have to mold our conversations so that each and every conversation get into the positivity. We do not have to look into the lack कि हमने lack नहीं करना, इसके बारे में पढ़ा, but we are not following that. That we have to do कि हम लोगों को उसी चीज में जाना है, वही चीज पढ़नी है, उसमें भी पॉजिटिव देखना है. So yes, and I just hope that practice is clear for all of us today. एंड श्याम जी का गाना तो हम लोग भूले नहीं है, सो वो तो सुनेंगे ही. उससे पहले अगर कोई और शेयरिंग हो तो हम लोग प्लीज कर सकते हैं. So And happy birthday one to more thing Ritu. is इसका मैं करती हूँ. हाँ जी, Happy हाँ जी. birthday to So much Ritu. for me and your voice. I really need it, Sarita ji. Yes, happy Happy birthday, birthday. Ritu ji. Thank you. Happy birthday. हैप्पी Thank बर्थडे. you सभी so गाना much. गाते हैं ना मैम के लिए. हैप्पी Yes. बर्थडे गाना तो टू गाए. यू. बर्थडे सॉन्ग लेट्स सिंग टुगेदर फॉर हर. एंड देन Yes. श्याम जी आप हैं ना सेशन में? Yes, 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 he is here. 100%. आई एम देयर प्रिया, और आपको सुन रहे थे. हाउ पैशनेटली Oh. और हाउ एनर्जेटिक यू आर.
Yes. Thank you so much. The same She's- passion you have for your singing ना, कहाँ से इतनी एनर्जी लगती है सुबह सुबह? उतनी पैशनेटली आपके सॉन्ग भी ये सुनेंगे हम लोग कभी। प्रिया तो लाइक ना पूरा डूबी हुई है ग्रेटिट्यूड के अंदर, हमको भी डुबो ओह। दिया। ये क्लास के टाइम भी लाइव ऐसा वायर लगता है, है। सेशन के टाइम पे। प्रिया तो प्रिया या बिल्कुल लाइव वायर है, ऐसे इतनी एनर्जी मैं इसको कब से ही बोले जा रहा हूँ, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है सुबह सुबह? थैंक यू We सो learn मच। a lot उनके of प्यार से vocabulary ही from मिलती है। you, Priya. इसके पास 2 स्टेट्स की एनर्जी है, 2 स्टेट्स की। हाँ, 2 states। एंटायर Actually, I have वर्ल्ड been to की many हर places in India. बहुत सारे पापा डिफेंस में थे ना, तो I have been to many places. तो 2 places के अलावा बहुत सारे states का है। पंजाब का भी है। All my schooling has been done from Punjab only, you know. So yeah. Thank you. थैंक यू सो मच प्रिया तो फॉर सच ए हम ग्रेट लोग Thank you let's so much. yeah, let's sing a song for ma'am. Happy birthday song. उसके बाद सर श्याम जी आप गाना सुनाइए। आज का वो song will be बिल्कुल dedicated to बिल्कुल। Ritu ma'am only. है ना? So happy birthday to Birthday you. to you. हैप्पी Happy Happy बर्थडे birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday, dear birthday, Ritu. dear Ritu ma'am. Happy हैप्पी birthday बर्थडे to you. Happy So birthday. yes, Happy over to birthday. Shyam ji Happy now. birthday. Thank you, Happy thank birthday, you. ma'am. Thank you so much, thank you. श्याम भैया गाना। All ears to you. आज का सॉन्ग सारी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए है। वाओ। आंखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा मन में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर आप This- पुराना पुराना Beautiful. गाना याद दिला देते हैं। Yes. मजा आ ये जाता है। सेशन अटेंड Beautiful, करने श्याम जी, का एक beautiful इंस्पिरेशन singing. श्याम जी भी होते हैं। Beautiful, beautiful, beautiful. नहीं तो हम लोग Yeah, maybe अरिजीत iconic सिंह ही Thank you so सुनते much. रहते। हम सभी ने अपने आप को सोच लिया है। थैंक यू प्रिया। रितु मैम में थोड़ा सा ज्यादा है ना मैम, आपका मैं बर्थडे तो है तो लटका रही, मैं all तो the अपनी privilege लटका today. रही थे, बाल भी लटका रही थी मैं अपने। Thank you everyone. Thank you so much, Shyam ji. Thank You you, always thank make you. our Sundays Thank you, Priya. delightful. Thank you so Sundays, Wonderful session. Sundays are fun day for us. थैंक यू मोजी। Thank you so much everyone for being in the session. Thank you you, so Priya. much for being the best listeners of the Thank you, world. You are the Priya. best Thank you listeners so actually. much. हैव अ ग्रेट डे प्रिया। Okay. Have a great day, everyone. Take Bye. care. Have a Bye. good one. Beautiful and magical day for all. Thank you. Let's Thank you, meet up ma'am. today and again we'll do the practices very diligently because those Yes. practices are only the thing that we are all together. So let's do the thing that we are all, that's the reason for all of us, right? हमारे well-being के लिए, हमारे togetherness के लिए, ये gratitude की practices ही हैं जिनके कारण हम लोग हैं। हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे की life में हैं. So let's do these practices diligently. So yeah, thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you. बाय। Priya. थैंक यू। Bye. Thank you, everyone.